Hello, good morning. Hi, and I think this is the sixth lecture, and we are now discussing the topic that is the general organic chemistry. Second, all right, and this is my Telegram link, and join it if you. And we have earlier studied all about the rearrangement, and earlier we have studied uh, addition of HBr, then formation of carbocation in the RDS. This is the addition reactions. All right. Now we are going to discuss, and that is this case is the anti-Markovnikov rule. So in the Markovnikov rule, and if you are just talking about the advanced anti-Markovnikov rule, and that is the addition of the Br minus that will take place at a very stable carbocation. Apart from that, if we are discussing anti-Markovnikov rule, and in this reaction there is also the addition of HBr, but the reagent that is the peroxide, and in the name of peroxide we also say that this is the R2O2, and R2O2 is peroxide having alkyl group. Which is alkyl group here? That is R, that is the alkyl group, and whole mechanisms run like a free radical addition, free radical mechanisms. All right. Mechanism is what? Initially, there is a chain initiation step in which the free radical that is generated here. So the free radical that is generated in the mechanism, and then after this free radical will catch up the hydrogen from HBr, forms ROH, and formation of Br free radical. And this Br free radical is very reactive, highly reactive species that is formed. Species that is formed in this reaction. Br free radical is very reactive species, and it will attack to the double bond. Here you see this double bond is attacked by the Br free radical that is formed in the second step, and this Br free radical attack to that part of the carbon where there is the generation of स्टेबल फ्री रेडिकल. मतलब इस रिएक्शन में एक स्टेबल फ्री रेडिकल भी बने. मतलब व्हेन Br इज एडेड, व्हेन Br इज एडेड, ठीक है, सो दैट देयर शुड बी स्टेबल फ्री रेडिकल. हम Br को इस तरह से ऐड करेंगे ताकि हमको एक स्टेबल फ्री रेडिकल मिल जाए. ऑलराइट. एंड देन आफ्टर this HBr, from this HBr, H will goes to the free radical, and there is the formation of this alkyl halide. Whenever the situation is required, if we see that if we want the product uh, whether it is 1 degree halide or 2 degree halide, all right, if we need a 1 degree halide, it is better to perform an anti-Markovnikov reaction using HBr and peroxide R2O2. If we need other than 1 degree, we always try to perform Markovnikov addition. All right. So in the previous classes, we have discussed the Markovnikov additions.
Now coming to the hydrogenations. Hydrogenation and this thing represent metals. All right. According to me, nothing just like that. This is important. ये सब मत बोल देना कि सर ने यही बताया है ना. ठीक है, तो ये तुम्हारा अल्कीन है. इसमें हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? अल्केन बनेगा. इन दिस केस इट इन्वॉल्व द सीन एडिशन. सीन एडिशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है एक ही डायरेक्शन में ऐड होंगे. सेकंड चीज यहाँ पे समझना क्या है. सीन एडिशन होता अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे रिएजेंट याद रखिएगा. हाइड्रोजन के साथ है तो प्लेटिनम हो सकता है, तो बनेगा ये प्लेटिनम रोडियम. ठीक है. PTO2 very special catalyst and it is a very specific catalyst and we call it as a Adam catalyst. नाम भी याद रखना है कि suppose if you have know any specific chemical that is given, only the name of the chemical that is given, that is Adam catalyst, you have to utilize is what is the specialty of this catalyst. It perform the hydrogenation. All right. Then after Wilkinson catalyst, that is the rhodium catalyst, RH that is in this case, and we call it as a triphenyl phosphine, and this is rhodium and this is chlorine, that is the Wilkinson catalyst. And the Wilkinson catalyst will perform a hydrogenation reaction and the mechanism is scene addition. All right. कैटलिस्ट में क्या होता है? एक एडिशन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? उसका एडिशन हो जाएगा. ऑलराइट. ठीक है. अब जैसे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे सपोज इन दिस केस ड्यूटेरियम विल ऐड लाइक scene addition where the deuterium is in the scene fashion added and this is also scene addition. scene addition आप एक तरफ से ऐड करो या तो पूरा एक तरफ से ऐड करो. ठीक है, मतलब एक तरफ से पूरा ऐड हो गया. ठीक है, आगे से भी ऐड कर सकते हैं या तो पीछे से भी ऐड कर सकते हैं. ऑलराइट. दिस इज इफ यू कंपेयर what is the relation between these two alkane, that is the identical one, and how you perform that, you can rotate it, and I have taught you so much of the cases how to see whether it is identical or enantiomer or diastereomer. All right. And the second point is that the unstable alkene is more reactive towards the hydrogenation. Unstable alkene का पहले होता है हाइड्रोजनेशन. ऑलराइट. अनस्टेबल अल्कीन is more reactive towards hydrogenation. ऑलराइट. अनस्टेबल जो भी होता है, अनस्टेबल का मतलब क्या था? रिएक्टिविटी ज्यादा होता है उसका. बात समझ में आ रहा है ना? अनस्टेबल अल्कीन रहेगा तो वो पहले हाइड्रोजन को लेगा. ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है क्योंकि यहाँ से हमें कहा क्वेश्चंस लिखेंगे. ऑलराइट. आपको बता देंगे कि जब क्वेश्चन करेंगे तो हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन का पॉइंट नंबर 2 हम कुछ बताए थे. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 इज दिस. इसको याद करना है, याद रखना है. ऑलराइट. देन आफ्टर कमिंग टू द रिएक्शंस, दैट इज there is a question, X is equal to, that is the total number of alkene that will form the N-butane in the presence of the H2 and Ni catalyst. So see here, कोई ऐसा अल्कीन है, मतलब कितने टाइप के अल्कीन हो सकते हैं जिनका हाइड्रोजनेशन करने से N-ब्यूटेन बन जाएगा. तो N-ब्यूटेन का अल्कीन क्या होता है? मतलब 4 कार्बन का अल्कीन क्या होता है? ब्यूटीन होता है. और ब्यूटीन में एक हम ये बना सकते हैं ब्यूट 1 इन, और ब्यूट 2 इन के 2 फॉर्म बनेंगे. ब्यूट 3 इन तो बनेगा नहीं, ब्यूट 2 इन के 2 फॉर्म बनेंगे. बात समझ में आ रहा है? एक क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है, फॉर्मेशन किसका होना चाहिए? एन ब्यूटेन. एन ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिक आइसोब्यूटेन एंड एनीथिंग एल्स. जो बोला जाएगा उसको समझना है. ठीक है. अब बच्चे क्या होते हैं कि
मोर, ये दिल मांगे मोर ज्यादा बना देते हैं, ठीक है। तो वो करना नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, और 2 से 3 बार पढ़ेंगे तब जाके मेरा आंसर सही आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये ऐसा नहीं है, जनरली जो कमजोर बच्चे हैं उनसे ये दिक्कत, अच्छे अच्छे बच्चों में भी दिक्कत है ये, ठीक है। छोटा मोटा क्वेश्चन जो पूछते हैं बच्चे ना, इसका रीजन यही है कि इसको 2 से 3 बार जब पढ़ेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं जो बता रहा हूँ ध्यान देना है, अल्किन मीन्स वन डबल बॉन्ड। यही कहाँ, अगर कहीं भी बोल दे कि अल्किन, ठीक है, अल्किन का मतलब समझना है एक डबल बॉन्ड है। अल्किन का मतलब कभी मत समझ लेना कि वहां पे डाइन्स है या तो ट्राइन्स है। अल्किन का मतलब क्या है, एक डबल बॉन्ड बस, ऑलराइट। ना तो डाइन्स है ना तो ट्राइन्स है। देन one other one concept that is H2PDC, and this is a very specific catalyst. There is a H2Ni, all right. This H2Ni and this is a H2PDC, and H2PDC. First of all, read this statement. Platinum carbon is selectively used to reduce only alkene at first, but it cannot reduce ketone. Uh, suppose in this case, what happened? If you have a case of the double bond and the ketone, तो पीडीसी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल अटैक, किसको अटैक करेगा, फर्स्ट इट विल अटैक टू द डबल बॉन्ड। स्पेसिफिक इसलिए बोला जा रहा है कि एक कीटोन का ग्रुप है, दूसरा क्या अल्किन का ग्रुप है, तो वो कीटोन को अटैक ना करे, किसको कर रहा है, अल्किन को अटैक कर रहा है, ठीक है। ये कैटलिस्ट का क्या है कि एक तरह से स्ट्रक्चर होता है इस तरह से कि भाई वो डबल बॉन्ड के साथ अच्छा मैचअप हो जा रहा है, पता नहीं, मतलब कि यू हैव टू रिमेम्बर दिस। पीडीसी पहले किसको अटैक करेगा, डबल बॉन्ड, फिर सेकंड में देखो, मतलब मोस्ट प्रिफरेबली इट विल अटैक टू द टू द अल्कीन एट फर्स्ट, ठीक है। अभी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट इट कैन आल्सो रिड्यूस कीटोन, इसका मतलब समझना है, ये कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड और कीटोन रहेगा तो वहां पे इसको करेगा, प्रिफरेबली डबल बॉन्ड को करेगा, डबल बॉन्ड को करेगा, समझ में आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड, कीटोन रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन बट इट कैन आल्सो रिड्यूस कीटोन का मतलब है कोई स्पेसिस में अगर बस कीटोन रहेगा तब जाके कीटोन को करेगा, डबल बॉन्ड और कीटोन रहेगा तो किसको करेगा वो, इट विल रिड्यूस टू द डबल बॉन्ड। बस कीटोन रहेगा कोई भी ग्रुप में तो किसको करेगा, कीटोन को करेगा, समझ में आ रहा बात। इट हैज अ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द अल्किन, अल्किन की तरफ इसका एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। एफिनिटी मतलब क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब H2Ni डालेंगे तो H2Ni क्या करेगा, पूरे को कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, मतलब डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और ऑक्सीजन को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है। all these concept cannot be understand only by the concept, it can only be understand by the questions, and the question here is see, ketone group double bond H2PDC, it will only reduce this double bond, क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन से यहाँ पे एविडेंस मिल गया, हाँ सही है, H2Ni complete reduction of the double bond as well as ketone, all right. Then H2PDC, what happened, कीटोन, अभी अभी जो बताया, तो कीटोन अगर रहेगा तो H2PDC इसको क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा, ये सब क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। ये एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा था, मतलब जेई एडवांस का, तो ओपी टंडन भाई साहब उसको अलग लेवल करके बना रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऑफिशियल आंसर की जो है वो सही है, ओपी टंडन जी बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, मतलब लेवल बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो H2Ni, देखो यहाँ पे हम ये क्यों दिए हुए हैं, इसका रीजन है,
इसका मतलब है OH कभी वेज हो सकता है, OH कभी डैश हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं ये इनैंसियोमर एंड दिस इज द कायरल सेंटर। क्लियर हो गया? ये मतलब वेव जैसा बना हुआ है OH, मतलब कि द OH बॉन्ड दैट कैन बी फ्लक्चुएट इफ आई टेक द अनदर आइसोमर। तो OH बॉन्ड क्या फ्लक्चुएट हो जाएगा, कभी ये वेज में आ गया तो एक आइसोमर, कभी ये डैश में आ गया तो एक आइसोमर। तो ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा मतलब कि लोग यूज करते हैं इस चीज को कि इस तरह से घुमा घुमा करके दे देंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि वेज भी है, वेज से भी बना सकते हैं उसको और डैश से भी बना सकते हैं, मतलब दैट रिप्रेजेंटेड द एनएनसीओमर। ऑलराइट, तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब अभी हम बता दे रहे हैं ताकि आगे जब भी रिएक्शंस होंगे तो उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान दो, अभी जो कि H2 1 मोल PtO2, जल्दी बताओ जरा, PtO2 कौन सा कैटलिस्ट था? PtO2 को शायद एडम कैटलिस्ट बोले थे, यहाँ देखा, दिस इज द एडम कैटलिस्ट। इट विल परफॉर्म, तो याद रखना है PtO2 क्या है, एडम कैटलिस्ट। एंड देन और H2 1 मोल PtO2 एडम कैटलिस्ट 1 मोल दिया है, ज्यादा नहीं दिया है, कम दिया है। कहाँ पर रिएक्शन होगा, रिएक्शन 1 में होगा कि 2 में होगा? याद करो, मैं बताया था रिएक्शन वहां पे होगा जहां पे अल्किन क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। तो लिस्ट रिएक्टिव कैसे चेक करेंगे? लिस्ट रिएक्टिव कैन बी चेक्ड by the number of alpha hydrogen. If the alkene have less alpha hydrogen, then it will it will be less reactive. If the alkene have more alpha hydrogen, it will be more reactive. That means जो पहला जो केस है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अल्किन में ज्यादा मिलेगा, दैट दिस अल्किन इज, क्या बोले हम, दिस अल्किन, दिस पार्ट ऑफ अल्किन इज मोर स्टेबल क्यों है? मोर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोर अल्फा हाइड्रोजन। एंड मोर स्टेबल का मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन नहीं हो गया यहाँ पे पहले। और ये जो अल्किन है यहाँ पे, दिस इज द लेस स्टेबल अल्किन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस अल्फा हाइड्रोजन। दैट्स वाई जो हाइड्रोजनेशन हुआ है, हाइड्रोजनेशन जो प्रिफरेबली जहाँ हुआ है, दैट इज दिस पार्ट। समझ में आ गया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? So in this case also, if you see, there is a more alpha hydrogen, there is a less alpha hydrogen. So why the reactions takes place at the less alpha hydrogen molecule, मतलब the alkene that is least stable। याद रखना है पक्का, ठीक है? एक यही से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, घुमा फिरा करके आएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन का एक मतलब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, दैट इज अ क्लास वर्क, यू हैव टू डू इट इन द क्लासेस। ऑलराइट, then after let us discuss of the some of the reaction, just like the reaction of alkene with the cold potassium permanganate. And the mechanism of this is the syn addition. We know that what is the syn addition and how the cheminophore that is going to react. All right, this is very important reaction. So this reaction we can understand only through a mechanism, we call it as a sigmatropic reaction। sigmatropic जैसे ये reactions होता है। what is a sigmatropic? अभी जानने का जरूरत नहीं, ठीक है? मैं जैसे बता रहा हूँ उसको समझोगे बस के बाद। ऑलराइट, ऑलराइट, ध्यान दो बच्चे, ये डबल बॉन्ड है ना, दिस डबल बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑलराइट, ये डबल बॉन्ड से ध्यान देना, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। क्लियर हो गया? देन ये जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा मैंगनीज की तरफ। हम मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फिर से डबल बॉन्ड। देन हियर यू सी द फॉर्मेशन ऑफ अ 5 मेंबर्ड रिंग। क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि KMnO4 वाले केस में कितना 5 मेंबर्ड रिंग है, तो बोलोगे कितना है, 1। क्वेश्चन ये भी बोला है कि इन द KMnO4 रिएक्शन मैकेनिज्म द नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट इज 0, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है?
ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछेगा नहीं। हालांकि ये जो एडिशन यहीं पे क्या हो गया, सीन एडिशन हो गया है, मतलब एक तरफ से ही एडिशन हो गया, इधर से इधर से। सेकेंड चीज, न्यूक्लियोफाइल दैट इज एडेड, दैट इज OH माइनस अटैक हियर, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, सुनो सबको, इसमें ध्यान देना है कि लास्टली जो OH आएगा दैट इज द कौन सा एडिशन होगा, दैट इज सीन एडिशन होगा, ठीक है। इस डबल बॉन्ड में KMnO4 डाल देंगे, कब, जब कोल्ड होगा, ठीक है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 जो भी है, कोल्ड KMnO4 होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये होगा। अब इसमें समझने वाला बात क्या है, इसमें समझो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये लास्टली टूट के क्या बन रहा है, MnO2 बन रहा है। MnO2 कलर क्या है, ब्राउन कलर है। ध्यान देना, डबल बॉन्ड में किसका एडिशन हुआ है, MnO4 माइनस का। MnO4 माइनस इज कॉल्ड एज अ बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, राइट, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, KMnO4 को बोलते हैं। और KMnO4 is the Bayer's reagent, that means this color is a pink, and this is used for the testing of the alkene and alkyne group. As per KMnO4 जो होता है, that is a Bayer's reagent in which KMnO4 is added to the alkene group, and there is the formation of a MnO2 that is in the brown color. Suppose this is the pink color and it converted into the brown color. Clear? तो इसमें बस ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें एक और चीज समझो, MnO2, ठीक है, और KMnO4, यहाँ पे KMnO4, इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है पता है, दैट इज N फैक्टर कितना है इसका, N फैक्टर इस रिएक्शन में कितना है। और N फैक्टर का मतलब हो गया कि ये जो रिएक्शन है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। N फैक्टर जो होता है वैलेंसी फैक्टर, इसका मतलब है N फैक्टर, ध्यान देना कि KMnO4 में Mn का होता है दैट इज इक्वल टू +7, ठीक है। KMnO4 में Mn का क्या होता है, +7, alright, and this +7 that is converted into the, इसमें कन्वर्ट हो गया है +4 में, alright, +4, +7 से +4 में चेंज कितना हुआ है, 3 का, तो N फैक्टर इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो ये रिएक्शन फॉर द कंप्लीटनेस हम सब बता दिए हैं कि मैकेनिज्म में होता क्या है, ऑलराइट, ठीक है। और क्या, देखो कि कोई भी चीज अगर इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो वो भी खराब चीज है, उसको रोकना चाहिए आदमी को, ठीक है। नहीं तो उसमें क्या होता है, लोग PhD करना शुरू कर देते हैं, रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो रुक गया तो अच्छी बात है ना। देन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, दैट इज सीन एडिशन, ऑलराइट। रेडॉक्स रिएक्शन था, हम बता चुके हैं, इट इज द टेस्ट ऑफ अल्किन एंड अल्काइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। ये इंपॉर्टेंट है इतना सारा KMnO4 के साथ, और ये चीज बता रही है आगे तक आएगा रिएक्शन, है ना। एंड देन कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4 अभी तुरंत बताए हैं किस तरह से एडिशन करता है, सीन एडिशन। तो OH जो है आपको किस तरह से ऐड होगा, सीन, या तो OH दोनों एक तरफ आगे से अटैक हो गया, या तो OH पीछे से अटैक हो गया। क्लियर हो गया। एंड तुम इधर आ जाओ भाई, ठीक है। एंड देन दिस OH, ऑलराइट, डिफरेंट। यहाँ भी वही OH यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, दैट इज डाया। यहाँ भी इन दोनों में रिलेशन क्या है, दैट इज डाया, राइट। देन वही है KMnO4 यहाँ पे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, KMnO4 जो यहाँ पे डाले हैं, OH का जो एडिशन कैसे हुआ है, सीन एडिशन हुआ एक तरफ से, दिस OH का भी एडिशन सीन हुआ, लेकिन ये क्या बन रहा है, इनहेंसियोमर बन रहा है। इसका रीजन क्या है कि तुम जब इसको यहाँ से मिरर इमेज लेकर के मिरर इमेज लोगे तो क्या बनेगा, ये पार्ट बनेगा क्या, देख लो,
बनेगा। अब मैं इसको अगर 180 डिग्री अगर रोटेट कर दूं यहाँ से, ठीक है, रोटेट करने के बाद क्या ये पार्ट बनेगा? यस, ऑफ कोर्स ये पार्ट बनेगा। इसका मतलब ये दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है दोनों में? दे आर द नेचर। क्लियर हो गया? ऑलराइट, तो यही सारे हैं, ये सब रिएक्शंस रिपीट होंगे, इसलिए अभी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे जो भी सब्जेक्ट है वो कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये सब भी कम पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अभी क्लास 12th इज दैट फेज जहाँ मैं फील करता हूँ कि कई कई पढ़ते पढ़ते ये भी लगेगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, क्या इतना पढ़ने से नंबर आएगा क्या? मतलब इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं मिल पाएगा कि अ, हम ज्यादा पढ़ रहे हैं तो मेरा नंबर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि वही है, कंसंट्रेशन हो करके, एक तरफ कंसंट्रेशन हो करके। ठीक है, दूसरा चीज है कि कमिटमेंट लेवल, आप कितने कमिटमेंट होते हो, कमिटमेंट मतलब करते हो कि कोई भी क्वेश्चन है जो दिया गया है या तो काम जो भी कर रहे हो, तो उसमें वो कमिटमेंट लेवल कितना है। एक जो टॉपर होता है ना, टॉपर जरूरी नहीं है कि वो जीनियस है। ठीक है, एक टॉपर का क्या होता है, कमिटमेंट लेवल इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि वो अगर पीछे रह गया है ना, तो सुनता नहीं है दूसरा का। ठीक है, वो सुनता नहीं है, वो खुद ही चलते रहता है, हाँ हम देख लेंगे, हम खुद ही कर लेंगे। दैट इज द कमिटमेंट लेवल ऑफ द टॉपर। ठीक है, यू कैन सी दैट कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो काम कर रहे हो कितना कमिटमेंट कर रहे हो उसको लेकर के। ठीक है, और दूसरा चीज है, सबसे बड़ी बात है कि टाइम पास ना करना। मतलब कि टाइम पास कर रहे हो, समझो कि वो गलत चीज है। और थोड़ा सा मस्ती उस्ती करना भी वो अच्छी बात है। ठीक है, मस्ती करने के साथ भी पढ़ाई होगा तो हो जाता है, वो सब भी होता है। Alright, चलिए, देन आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास।